At the very outset, let me convey to you my deep regret over the distress caused to you by the news story published in Bombay Times, dated 13th April 2016. The tragic demise of our dear and beloved member, Ms. Pratyusha Banerjee, was a very big shock, not just for the artist community, but the whole film and television fraternity as well. The ensuing media scrutiny which happened was even more disturbing, to say the least. All said and done, let me state unequivocally that the statements given by Mr. Amit Bahal were his and his alone, and do not in any way reflect Cinta's stand. Though he is a member of the Executive Committee and Joint Secretary as well, he was neither authorized by Cinta nor did he consult the Executive Committee before speaking upon this issue. Cinta is there only to protect the rights of its members and ensure that they fulfill their professional obligations in an honorable manner. The personal lives and actions of our members outside of professional sphere do not come under Cinta's purview. Once again, let me reiterate that Cinta never considered any such action against Ms. Rakhi Sawant or Mrs. Dolly Bindra, for the simple reason that our and your personal lives are yours and yours alone, and we do not consider ourselves to be any kind of moral police. Wishing you all the very best for all your endeavors. मैं हिंदी में इसका आपको अनुवाद बता दूं। हालांकि अमित बहल जी हमारे मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन उनका जो भी स्टेटमेंट था वो सिर्फ उनका था। सिंटा का वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक्टर्स के राइट्स की सुरक्षा करना है और ये सुरक्षित करना कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यक्तिगत स्टेटमेंट्स सिर्फ उनके हैं और सिंटा किसी किस्म की मॉरल पुलिस नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। दूसरा अनाउंसमेंट, फ्रॉम नाउ ऑन आई हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्पोक्सपर्सन फॉर सिंटा। आज से जो भी स्टेटमेंट सिंटा के बारे में जाएगा, यदि वो मेरी तरफ से ऑथराइज नहीं है तो उसमें सिंटा का नाम आप कृपया यूज़ ना करें, वो किसी का भी व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। तीसरा अनरिलेटेड अनाउंसमेंट, शिल्पा शिंदे जी ने एक लीगल नोटिस भेजा है हमें इस पूरे प्रकरण में जो उनके साथ हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको डिफेम किया गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें हम या फिर हर्जाना भरें, अन्यथा जो भी जॉइंट ऑर्डर फेडरेशन, IFTPC और सेंटा ने पास किया था उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उसका लीगल रिप्लाई उनको भेज दिया जाएगा और आगे जो भी कार्रवाई है वो लीगल सेल ही तय करेगी। थैंक यू। नाउ यू टेक इट। तेरह अप्रैल को जो बॉम्बे टाइम्स में जो आर्टिकल छपा, उसके बाद मैंने एक अपॉलॉजी लेटर सिंटा को भेजा था। उसके बाद नेहा जी डॉली जी और राखी जी ने डेफिनेटली सिंटा को अप्रोच किया और मेरा एक जवाब हमारी EC मेंबर्स को गया था, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, बिफोर आई गो टू द प्रेस। तो मेरा जवाब अंग्रेजी में ये था कि रिस्पेक्टेड EC मेंबर्स, in continuation to my earlier apology, I would once again like to offer my unconditional apology to Mrs. Dolly Bindra and Ms. Rakhi Sawant for using the word ban and other related statements. I admit it is entirely my fault and mistake for having used these words and also going on record on electronic media, WhatsApp and SMS about their actions or views on Pratyusha Banerjee's untimely demise, which had affected me very gravely mentally. I regret it and hereby apologize to both my colleagues Dolly and Rakhi
it was not justified at all, as both have been earlier members of Sinta's executive committee and are respected members of our fraternity. I admit my folly and immatureness for having made these statements, especially in print to Miss Neha Maheshwari of Bombay Times, and as the Joint Secretary and Chairperson of the Dispute Committee of Sinta, I should have consulted my EC members before making such statement. I would be very grateful if the EC and both Dolly ji and Rakhi ji accept my apologies. I am also open to any disciplinary action which my esteemed executive committee wishes to take. इसमें मैंने ऐड किया है कि आई कैन ऑल्सो ऑफर माई अपॉलॉजी ऑन कैमरा टू बी सर्कुलेटेड इन केस आई एम फिजिकली नॉट अवेलेबल फॉर द एमरजेंसी EC मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू टू माई शूटिंग कमिटमेंट्स इन दिल्ली. इसका हिंदी अनुवाद बहुत सिंपल है कि मुझे अगर जब प्रत्युषा का डिमाइस हुआ था, देयर वाज अ लॉट ऑफ मीडिया थिंग्स हैपनिंग, प्रेस में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और सुशांत जी बीइंग द जनरल सेक्रेटरी और मैं बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन ऑफ द डिस्प्यूट कमिटी, शिल्पा शिंदे के केस को लेके, प्रत्युषा के डिमाइस को लेके, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को लेके मैं बहुत स्ट्रेस था. और इस स्ट्रेस के दौरान मेरी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती हुई है कि एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सिंटा एंड चेयरपर्सन ऑफ द डिस्प्यूट कमिटी ऑन अ पर्सनल लेवल मेरा फ़र्ज़ ये बनता था. बट मैं इसमें थोड़ा सा ये कहते हो, आप इतना स्ट्रेस थे तो आपने आपका स्ट्रेस राखी सावंत पे क्यों उतारा? मेरी पूरी गलती, मैं मानता हूँ इसको, मैं 100% मानता हूँ. अगर मुझे कोई भी डाउट था, आई शुड हैव पिक्ड अप द फोन, स्पोकन टू डॉली एंड राखी एंड आस्क्ड देम क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं था क्या हो रहा है. और अनजाने में, और मेरी बहुत बड़ी गलती है कि एज सिटिंग इन दिस टेबल, क्योंकि जब डॉली जी या राखी जी कमिटी मेंबर्स थे, उन्होंने कभी भी ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दिया था. मैं इस पूरे इंसिडेंट को टोटली रिग्रेट करता हूं और मैं डॉली जी और राखी जी से और मेरे इसी मेंबर से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने बहुत ही इमेच्योरली और ये स्टेटमेंट दिया, जिसके वजह से आई एम श्योर कि उनकी जो अनटार्निश्ड और एक अच्छी रेपुटेशन है, जो इतने सालों से उन्होंने अपनी मेहनत करके काम करके बनाई है, उस पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ होगा. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी तरफ से जितना मैं डैमेज कंट्रोल कर सकता हूँ, एक अपॉलॉजी तो एक चीज़ बात है, दूसरा कोई कॉरिजेंडम अगर मेरी तरफ से है, क्योंकि इसमें आप दोनों की कोई भी भूल, कोई गलती नहीं है. सारी की सारी गलती, सारी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए था. इसी कारणवश अभी सुशांत जी ने बताया कि मैं एज अमित बहल इंडिविजुअल कैपेसिटी एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, लेकिन एज जॉइंट सेक्रेटरी, कमिटी पर्सन, मेरा बिल्कुल कोई हक ना कोई अथॉरिटी है कि मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट, वो भी ऐसे बैन शब्द जो सिंटा को अथॉरिटी नहीं है. मैं कौन होता बोलने, जब सिंटा को अथॉरिटी नहीं है किसी को बैन करना, मेरे को कोई भी राइट नहीं था, कोई हक नहीं था. एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने अपने करियर पर तो डेफिनेटली ये बोल के एक छोटा दाग लगाया, लेकिन जो दो मेरे कोलीग्स हैं मेरे, जो उन्होंने अच्छा काम किया है इस इंडस्ट्री के लिए, कमिटी के लिए, और अभी भी करते आ रहे हैं, चाहे सोशल लेवल पर हो, चाहे सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो बाहर जाके सिंटा को या एक्टर कम्युनिटी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उस पर मैंने डेफिनेटली 15 ईयर्स, मैं अमित जी को बताना, 15 ईयर्स से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ. बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. और हर आर्टिस्ट, आपने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं. प्रत्युषा हमारी दोस्त थी और मेरा अलग अंदाज़ा है, एक अलग है. मैं फ़ैन का, मैंने कहा कि मुझे इतना शॉक लगा है प्रत्युषा का जो इंसिडेंस हुआ है. और मैं ये मेरा सोचना है कि सीलिंग फ़ैन बंद करो और टेबल फ़ैन लगाओ, ये मेरा सोचना है. तो मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे आई और आपने एक शब्द कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, हम इनको बैन कर देंगे और हम इसको इंडस्ट्री से निकाल देंगे. तो सिंटा का तो ये काम है ही नहीं. करेक्ट. सिंटा का तो ये काम है ही नहीं कि किसी भी आर्टिस्ट को बैन नहीं कर सकते और किसी को भी ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हम आपको निकाल देंगे. करेक्ट. ये सच है. करेक्ट. तो आपको पता है कि ये मेरे करियर में कितना डैमेज हुआ है. मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई, उन्हें अटैक आया है कि मेरी बेटी को क्या काम नहीं कर सकती.
मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई, शी इज़ एट होम अभी, मैं लेकर आई हूँ, मेरे काम पे फ़र्क पड़ा, मुझे कितना डैमेज हुआ है। इसलिए मैंने कहा, आपको कहा, सिंटा को कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप अपॉलॉजी या पूरी मीडिया के सामने नहीं करेंगे तो आई एम गोइंग टू सू, या फिर मैं आत्महत्या मेरे करने के दिन आ गए। जिस फ़ैन को मैं हटाने की कोशिश कर रही थी उसी फ़ैन पे मेरे लटकने के दिन आ गए। करेक्ट। तब जाके आप लोगों ने ये स्टेप उठाया कि नहीं, वी विल डू द अपॉलॉजी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो राखी जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, और मैं आपसे और डॉली जी से एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी और एक माफ़ी चाहता हूँ, और आई रिग्रेट व्हाटएवर स्टेटमेंट दैट आई हमें मेड। इतना डैमेज हुआ है जी अमित जी, जी व्हाट्सअप, ट्विटर, जी, फेसबुक, जी। ऐसा कोई अखबार नहीं है जहाँ पे हमें धब्बा नहीं लगाया गया। इन फ्यूचर मेरा पॉलिटिक्स का करियर हो सकता है, मैं स्पीच देती हूँ हर जगह जाके, कौन बिलीव करेगा मेरे स्पीच पे? करेक्ट। क्योंकि आपने कहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट किया, मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। क्या मुझे लोकतंत्र में क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? अगर ये मेरी सोच है फ़ैन हटाना, तो कोई कौन होता है मुझ पर ब्लेम करने वाला? करेक्ट करेक्ट। तो कितना बड़ा धब्बा लगा है, कितना बड़ा डैमेज हुआ मेरी लाइफ को। जी जी। तो अब ये कैसे भुगतान होगा, आप मुझे बताइए। ये धब्बा हटाइए आप मेरी ज़िंदगी से। मैं राखी जी सिर्फ इतना, मैंने अपने ईसी मेंबर्स को ये भी कहा है कि वो जिस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे पास लेना चाहें, क्योंकि मैंने एक ऑफिशियल कैपेसिटी पर ये एज अ स्टेटमेंट किया है, और मैं इस बात को मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैं किसी दो व्यक्तियों के करियर पर और उनके फ्यूचर पर, सिर्फ एक्टिंग करियर नहीं, आगे जाके आप कुछ और भी करना चाहेंगे, आप या डॉली जी, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, उसमें भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है, और हो सकता है कि ये आगे जाके कोई मेरे बारे में भी ये स्टेटमेंट करे, मेरे करियर में भी इफेक्ट हो सकता है। मेरे पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन है। आपने अपॉलॉजी बोला है जी। अब ये मीडिया सब छापे, जी। पूरे देश को बताए, क्योंकि मेरी बहुत बदनामी हो गई है। मैंने मीडिया से मैंने कभी भी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मैं आइदर मेरा ये दाग नहीं धुला तो आइदर आई डू सुसाइड, आइदर मैं आप पे केस ठोकूं इतने सारे करोड़ों का, मेरा ये दाग धुल जाए। मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया है, मैं सिर्फ अपनी दोस्त को न्याय दिलाने के लिए ये मैंने स्टंट मतलब ये किया, दैट इज़ वो मेरा पर्सनल था। आई एग्री। तो मैं एक्चुअली मैं सिर्फ आपसे और मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो डैमेज मेरे तरफ से हुआ है, और जो 22 साल से ज़्यादा जितने लोग मीडिया में मुझे जानते हैं, और उससे पहले भी जो लोग मेरे थिएटर करियर को, अगर उनको लगता है कि मेरी बात में अगर रत्ती भर भी ऑनेस्टी है, और मैंने किसी भी इंटेंशन की वजह से ये नहीं किया, लेकिन गलती हुई है, मैं इसको रिग्रेट करता हूँ। अगर इसको ये सारे व्यूअर्स, रीडर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक पहुँचा दें, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द मीडिया कि मेरी इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा दें, ताकि दिस मैटर इज़ सॉल्व्ड, और हम लोग, राखी जी भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें, और डॉली जी के भी करियर को, डॉली जी के भी सिंटा का काम इमेज क्या है, आर्टिस्ट और प्रोड्यूसरों के बीच में एक जी सीढ़ी बनाना, जी जी दोनों को बैलेंस करके करना, ना कि आर्टिस्टों को बैन करना। करेक्ट। हमें, मेरे राकेश सावंत के लिए कोई जेल नहीं बनी, और ना ही कोई मुझे बैन कर सकता है। मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, मैं अपनी मेहनत से ठोकरें खा के यहाँ तक बढ़ी हूँ, मुझे कोई बैन नहीं कर सकता, ना ही मेरे लिए कोई जेल बनी है। करेक्ट। हाँ, उंगली नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं, शायद आपको पता नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइंस आया है। हाँ हाँ हाँ, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ एक्टर, बट एज अ जॉइंट सेक्रेटरी ही हैज़ नो राइट्स। नहीं, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी हैज़ नो राइट्स टू बैन अस। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे करियर में फ़र्क पड़ा है। पूरी देश की जनता हमें कितना अब्यूज़ कर रही है, देश की जनता हमें अब्यूज़ कर रही है, बहुत सारे लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। हाँ,
ऐसे कैसे एक बंद कमरे में आपने माफ़ी मांग ली? इन्होंने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दिया, हमें बदनाम किया हर जगह, हमें बदनाम किया। नेहा बॉम्बे टाइम्स में फ्रंट नेहा, हाँ बस जिस तरह से हमें हर अखबार में बदनाम किया गया, बस वैसे अपॉलॉजी मेरी नेहा महेश्वरी जी से बात हुई जी। थी, आर्टिकल उन्होंने छापा और उस आर्टिकल में जो भी छापा उसमें कोई उंगली नहीं कर रही हूँ मैं, एक मिनट राखी जी, मेरी उन्होंने उंगली करी है। नहीं राखी जी मेरी बात सुन लीजिए, जो उनका जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आपको मर्डर करे वो और आपसे माफ़ी मांग ले, नहीं आपका मर्डर करे वो आपसे माफ़ी मांग ले तो वो मैटर नहीं है यहाँ पे। ट्रेन की पटरी, हुआ यू, आप कौन हो? अच्छा, तो आप उनके आप नहीं रिपोर्टर हो तो आप उनकी साइड क्यों ले रहे हो? नहीं वो साइड नहीं ले, मैं बता रहा हूँ ब्रदर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 13 अप्रैल को नेहा महेश्वरी ने एक आर्टिकल छपाया जिसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा, जो मैंने बोला था वही बोला था, और नेहा ने ये प्रॉमिस किया कि वो कॉरिजेंडम उसी तरीके से जिस तरीके से छपा था, जिस तरीके से आपके अगेंस्ट छपा था, अखबार ने छपा के राखी साहब ने बैन। राखी मैं बोल रहा हूँ, आप मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी 100% गलती मेरी है और मैं सिर्फ आप लोग, आपसे ख़ास तौर से, डॉली जी से ख़ास तौर से, मीडिया से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिटन स्टेटमेंट मेरी तरफ से एज अमित बहल तो जाएगा ही, वर्बल स्टेटमेंट मैं दे ही रहा हूँ। नेहा महेश्वरी हैज़ प्रॉमिस कि वो जिस तरह से वो आर्टिकल छपा था फ्रंट पेज पे, उसी तरह से वो आर्टिकल करेक्ट होके आपकी रेपुटेशंस को ना डैमेज होते हुए कॉरिजेंडम वो छप जाएगा। इससे ज़्यादा मैं और आश्वासन नहीं दे सकता, और मैं फिर तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, डॉली जी से माफ़ी मांगता हूँ। आपको मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, डॉली जी के साथ तो मैं बहुत काम भी कर चुका हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश डॉली जी नहीं है, बट डॉली जी इज़ अवेयर कि जो मैं ये बोलने वाला हूँ, और कल ये जो है मैं सिर्फ एक ओपन अनकंडीशनल अपॉलॉजी एंड अ रिग्रेट। और आप भी प्रत्युषा को पर्सनली जानती थी, डॉली जी भी प्रत्युषा को पर्सनली जानती थी, मैं भी प्रत्युषा को पर्सनली जानता था। अनफॉर्चुनेटली अगर एक पर्सनल लेवल पर मैं आपसे फ़ोन करके पूछता, जब मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं बॉम्बे दिल्ली कि राखी क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ मुझे, तो राखी एज माई कोलीग, वो इनफॉर्मल बात होती तो बात अलग होती, मैं डॉली जी को फ़ोन करके पूछता कि डॉली जी क्या हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज ऑफिशियल कैपेसिटी जो मैंने बोला उसमें पूरी मेरी गलती है, एंड एज अ एजुकेटेड मैच्योर्ड पर्सन ये मुझे कोई राइट नहीं देता कि मैं अपने एक मेंबर के बारे में, वो भी एक मेरे एक्स कमेटी मेंबर के बारे में जिसने काम भी किया हुआ, जो आगे भी काम कर रही है, उसके बारे में इस तरह का स्टेटमेंट दे। इसलिए मेरा रिग्रेट 100% है। मैंने ऑलरेडी अपनी ईसी को बोला है कि अगर वो चाहते हैं कि मेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो तो वो प्लीज़ आप लेने को तैयार हैं। बाकी आपकी और डॉली जी की रेपुटेशन में जितना कम डैमेज और डैमेज कंट्रोल मैं कर सकूं एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं करूंगा, ये मेरा फाइनल कहना है। बस हमें तो यही नहीं, शिल्पा शेट्टी को बैन नहीं किया गया सर आप, मैं वही आपको उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद आप लोग थे वहाँ पे, और जो स्टेटमेंट जो सुशांत जी ने दिया, और सिर्फ हमने नहीं दिया है सर, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ FWIC हमारी पेरेंट बॉडी है। प्रोड्यूसर्स की 4 बॉडीज़ हैं, जिसमें प्राइमरीली है IFTPC जो इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स काउंसिल, जिसके साथ पहले जब राखी जी कमेटी में थी और डॉली जी कमेटी थी, उनके साथ जद्दोजहद लड़ाइयाँ चलती रहती थी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम टीवी में ही है। उसके बाद जब हमारी नई कमेटी आई, हमारी जद्दोजहद भी वैसी चलती रही। लेकिन क्या हो जाता है कि सिंटा सबसे पहले अपने एक्टरों के हित के बारे में सोचता है, क्योंकि वी आर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। हम पहले हमारे एक्टरों की बात सुनते हैं, फिर उनसे लिखित में लेते हैं, उसके बाद वही एक्सप्लेनेशन और जो लिखित में कंप्लेन है वो IFTPC के पास जाती है। IFTPC अपना जवाब देता है और वो हमारे लेटर की कॉपी प्रोड्यूसर को भेजता है, जिस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कंप्लेन आई है। ओके, प्रोड्यूसर अपना एक्सप्लेनेशन भेजता है, उसकी कॉपी हमारे पास आती है। यानी अब हमारे पास दोनों सिक्के के पहलू हैं। अब दोनों सिक्के के पहलू हैं, उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। तो सिंटा की डिस्प्यूट कमेटी बैठती है, जिसमें सुशांत सिंह, मैं, सुनील सिन्हा, दीपक काजर, हम लोग बैठते हैं। उसके साथ साथ प्रोड्यूसर्स की जो डिस्प्यूट कमेटी है, जैसे श्यामाशीष भट्टाचार्य, राजन शाही, संजय वाधवा, BP सिंह, अभिमन्यु सिंह,
ये जेडी मजीठिया, ये लोग बैठते हैं। प्रोड्यूसर जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो आता है या आती है, और हमारा मेल या फीमेल कंप्लेनेंट आता है। तो एक जेडी ऐसी होती है जो कैमरे पर रिकॉर्ड होती है। जेडीएससी के बाद 2 ही लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, या तो हाँ या ना। जेडीएससी हुई जिसमें शिल्पा की पूरी बातें सुनी गई। शिल्पा ने उसके बाद बोला कि मुझे जेडीएससी से सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं ये केस फेडरेशन यानी FWICE जो पेरेंट बॉडी है जिसके अंडर हम 22 क्राफ्ट आते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, डांसर्स, लाइटमैन, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, साउंड रिकॉर्डिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, फीमेल जूनियर आर्टिस्ट, मूवी एंड डमी इफेक्ट्स, देन आर्ट डायरेक्टर, तो FWICE की जॉइंट मीटिंग हुई। उसके बाद भी जिस मीटिंग को शिल्पा 1, 2, 3, 4 बार उसने कैंसिल किया किसी कारणवश, 5वें बार वो मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि 15 दिन में या तो अब अपना नोटिस दें या 90 डेज़ का अपना एग्जिट नोटिस सर्व करें, या जो मॉनेटरी लॉस कॉम्पनसेशन प्रोड्यूसर को हुआ वो दें। और हमने कहीं वर्ड बैन यूज़ नहीं किया है, वी हैव रिक्वेस्टेड नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि कल चाहे राखी जी सिंटा के मेंबर हैं, मैं सिंटा का मेंबर हूँ, मैं सिंटा मेंबर कहीं डिफ़ॉल्ट करता हूँ और मेरी कमेटी ने मेरे अगेंस्ट सिर्फ इतना बोला है कि इसके अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन रिक्वेस्ट हुआ है। कल मैं जाके सेट पे अगर किसी तरह का हंगामा करता हूँ या राखी जी किसी तरह का, तो मेरे लिए आंसरेबल कोई बॉडी नहीं है, उतना ही किया गया है। उसके बाद शिल्पा जी एनीवेज बस सिंटा को किसी भी आर्टिस्ट को बैन करने का अधिकार नहीं, किसी को, हम ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन किसी को बैन नहीं कर सकता। सिंटा को अधिकार है बैन शब्द बैन मैं राखी जी से माफ़ी इसीलिए मांग रहा हूँ, डॉली जी से इसीलिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे आर्टिकल में बैन शब्द मैंने यूज़ किया है जो मेरी गलती है, एंड आई रिग्रेटेड, और ये ज़िंदगी भर ये रिग्रेट मेरे पास रहेगा। मैं उतना कह रहा हूँ बस। मैडम उस लेटर की कॉपी हमारे वेबसाइट पर है, वो लेटर सारी मीडिया को सर्कुलेट हो चुकी है। 16 अप्रैल को लेटर जा चुका है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पंकज जी और सुशांत सिंह ने एड्रेस किया है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, 40 चैनल पर अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अगर शिल्पा पहले पॉलिटिकल रास्ता अपनाया, उसका भी कुछ नहीं हो, अब वो कोर्ट जा रही हैं, जब कोर्ट में जाएंगी तो हमारे पास इनफ प्रूफ, ऑडियो प्रूफ, वीडियो प्रूफ, रिटन प्रूफ सब कुछ मौजूद है। अगर यहाँ सिंटा और अमित जी माफ़ी नहीं मांगते तो मैं भी कोर्ट में जाने वाली थी, और मैंने इसीलिए माफ़ी मांगा क्योंकि डॉली जी के पास और राखी जी के पास इनफ प्रूफ है मेरे अगेंस्ट। वो चाहती हैं, अगर डॉली जी चाहें और राखी जी चाहें, इनका अच्छा है, इनका बड़प्पन है कि ये मेरी बात सुन रही हैं और मीडिया के सामने ये बात हो रही है, नहीं तो वो जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहती थी मेरे अगेंस्ट वो ले सकती थी। ये उनका बड़प्पन है, इसलिए उनके बड़प्पन के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। और आई एम गोइंग टू एंश्योर कि जो डैमेज मेरी वजह से हुआ है वो हो सकता है 100% क्योर ना हो, बट 90% क्योर करने की मेरी क्षमता है। दैट्स व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग। मैंने सवाल इस हाँ हम उसके बारे में हम फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ऑफिशियली अभी सुशांत जी ने बोला मैडम अभी सुशांत जी ने कहा कि मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। सुशांत जी स्टेटमेंट देंगे हमारी इसी मेंबर से डिस्कस करके। ये केस राखी जी, डॉली जी और मेरे को रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको प्लीज़ बीच में ना लाएं। नॉट नाउ, आई एम नॉट क्लोजिंग द केस राइट नाउ, जब तक कि जितना डैमेज हुआ है मेरे लाइफ में, एंड डॉली अपना खुद कमेंट करे, मेरी लाइफ में जितना डैमेज हुआ है, अभी तो इन्होंने कहा है कि हम सारे अखबार में हर जगह छपवाएंगे कि सिंटा को अधिकार नहीं है राखी सावंत को बैन करने का या किसी को भी। बस यहाँ सिंटा की बात नहीं है तो मेरी बात हो रही है क्योंकि मेरी वजह से ये हुआ है। और बट टाइम्स ऑफ इंडिया में सिंटा का नाम आया था। करेक्ट, तो मैं ये चाहता हूँ और सिंटा का केस क्लोज नहीं हुआ है। इसलिए सुशांत जी का जो स्टेटमेंट है आज, जो ये अभी आपके सामने बोला, वो स्टेटमेंट प्लस मेरा पर्सनल स्टेटमेंट प्लस ये दोनों एक साथ छपेंगे। और जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, यू कैन नॉट, इफ यू वांट, यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी। नहीं, आपने कहा है ना कि आप हर जगह छपवा देंगे तो काम खत्म। और मैं छपवाने वाला मैं नहीं हूँ। यहाँ पर मेरे मीडिया के सीनियर जूनियर्स हैं, वो लोग, उनको लगा कि अगर मेरी अपॉलॉजी में उनको रत्ती भर भी ऑनेस्टी नज़र आई है तो आई लीव इट टू यू।